ease of use, but also brought analysis on the click. So what this graphical user interface did was it created ease of use. Ease of use is not limited to how we interact with the software, but ease of use is related to how we conduct the analysis on a software. Unlike MS Excel or the spreadsheet, in SPSS, you need not to write function in the formula bar. Rather, you select the desirable variables and then select the analysis you want to conduct by using this GUI on clicks, and you will obtain the result. So the main reason why SPS is on the top is basically because of its ease of use created by its graphical user interface. Can somebody confirm if I am clear and audible to you all? Yes, Yes, sir. sir. All clear. Yes, sir. Thank you, sir. All Thank you, clear, sir. sir. Thank you. So just have a look on a very quick review of the SPSS over the person behind it. So SPSS was originally created by 3 Stanford graduate students along with professor and scientist Norman Nee in 1960s. Initially, it was expanded as the statistical package for social sciences. SPSS stands for this. Gradually, then it is sold to a company called SPSS Southeast Asia. This company, SPSS Southeast Asia, they try to reposition it like statistical product and services solution. And for a long, it is popularly considered as SPSS only, irrespective of its ownership. Now, in 2016 or 15, it was acquired by IBM and become now IBM SPSS and only IBM SPSS, no more extension to this. Before I go ahead in this session, I want to discuss one important aspect that SPSS brought into the area of data science and data analysis. You may have observed that every sector, be it agriculture, be it technology, or any sector, retail, every sector has a trigger point that actually initiates the major transformation and revolution in that industry. Like in retail in India, most of the retail industry was organized after the initial efforts by Kishore Bayani and entry of the Big Bazaar and these kind of stores actually has transformed the retail industry a lot. So same kind of trigger has been pressed by this software called SPSS. I share my experience after most of the training sessions. The most frequent feedback that I usually obtain is that learning SPSS has increased my interest level in the data analysis. And that is not a compliment to my session, but is a compliment to SPSS. But SPSS has created so much ease to the users that people actually start to take interest in data analysis. They are no more under the fear of analysis. But let me tell you one more thing. Today in the morning session, Dr. Ritesh Shingal was taking a session on statistics and taking some of the glimpse from that. I'm mentioning one statement here. SPSS cannot substitute the requirement of statistical understanding. Despite all the powers that SPSS can give to you, or per se any other software can give to you, would not be able to substitute the requirement of statistical understanding. It means that when you conduct the data analysis as two parts. Part number one is related to what you want to do in the data analysis itself. And to do this data analysis easily, in lesser time, with more accuracy, you use any kind of software or application. So this application or software could be considered only as a tool that is actually helping you, but it would not help you to decide what kind of analysis is appropriate on your data set.
So why to conduct analysis, which methodology is appropriate, what variables to be used, this understanding is still at the part of researcher or a scholar or student. They have to decide. And then if they have the required understanding, they can use any software like SPSS. Now, because of the limited time, I'm not going into the details of statistical understanding. You better can refer various video lectures or books. But of course, going forward in the session, when I discuss some of the examples, while working with the SPSS, I'll definitely share or touch upon certain points which are very important from the statistical point of view. With this background, let me tell you how to get the free version of or the trial version of SPSS. So what I have done is I have captured the screenshots, right? That will guide you how to install it, and very quickly I'm covering it. You go to Google and type IBM SPSS software download, and the very first result is downloading IBM SPSS Statistics 26. So from the version 19 onward, and still up to 26, there are minor changes that has happened. But yes, of course, there are some improvement on the upper side or higher side or on the add-on features that make differences between the prior versions and this latest version SPSS 26. Otherwise, if you have earlier versions, so it is equally good. So click on this one. It will take you to this link, IBM support. Just little scroll down to this link. This is SPSS statistics product page. So you have to move to this page, and from it you can see try it now, right? When you click on this try it now, you go to this page, and which actually require you to create an account, create your trial account at no cost. So you may log in or use LinkedIn as well. What I want to point out here is 30 days trial period. Right? Earlier it was 14 days only, but now IBM is offering it for 30 days for the faculty member and the student. You can go and download it. Once you download it, then there is a process of installation. This link I will share in the chat box after some time. This will give you the detailed PDF about the installation process of the IBM SPSS on Windows, right? So this link will, I will share this link with you. Once you, Amit Bhardwaj, can you please turn off your mic? Thank you. So if you want to ask any question, please stop me in between and we will discuss. So once you install your SPSS, then go to the start menu and type the SPSS. You will get this here in, and then click over here. This first pop-up will appear, which take you to this page. This opening page of SPSS data editor. It is giving you or offering you 4 options. Run the tutorial, type in data, run existing query. So push the button, type in data, press the OK button, and when you press it, it will take you to this file, and this file is IBM SPSS Statistics Data Editor. So this is the data editor window, the very first file that you will receive. If you see, there are 2 tabs over here on this SPSS data editor window. One tab is data view, which is highlighted here. Second is variable view. Now for next almost 10 or 12 minutes, I will be spending to discuss these 2 tabs, because there is a linkage between these 2 tabs. Those who have the prior understanding would be knowing it, that why it is important to understand the variable view and the data view first before starting any kind of analysis. So I will be spending some time over here. So these are the 2 views.
And the menu items you can see here: file, edit, view, data, transform, analyze. This window is quite similar to the window of any spreadsheet or Excel. Now this is the data entry sheet. So if you are on this tab, data view, right? Data view. Data view is to enter the data, and if you can see the column name, every column has got only one name called VAR, that is variable, right? And if I go to the variable view, right? So variable view will be like this. And if you can see the title of the column, it says name, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, measure, and roll. These are 11 different parameters that you have to define for every variable. To make it a little more clear, try to understand this way. If I am going to create one single variable, for example, maybe the salary, right? I am conducting any kind of research on the employee behavior, and age, salary, gender, these could be certain variables. So I'm considering one variable called salary. When you define your variable, this variable will be replaced by the term salary. Now you have to define these 11 items for this first variable, salary. The very first is name. So I'll write salary. Name is salary. What type of data would be it? It would be numeric data. Width of the column, decimal, up to what decimal point you want to take the salary, 2 decimal, 3 decimal. Label is about, see, the name, when you define name, there is a limitation. Right? You cannot simply write long description of the name. You have to make it little precise, and there are certain rules for it. I'll discuss in the slides coming ahead. So when you are defining the name, you have to shrink it or you have to code it. But label give you the liberty to explain it in detail. So you under the label will say employee salary, right? So this will give me the idea what is this salary if I'm giving any code to this. Then the next column is about value. Value is especially for the variables which are categorical variable. So what are the categorical variable? So very simple example could be like gender. So another variable that I may use is gender. So for gender, the name would be gender. Type would be, I would say numeric. Why numeric? I'll tell you. There would be 0 decimal. Label would be the gender of employee. And value, I'll have to tell to the software that in my data sheet, which is here, whenever you see 1, consider it male. Whenever you see 2, consider it female. And if you want to use a string in place of numeric, even then you can use F for female and M for male. It's basically lying with you what type of data you are having. And but yes, of course, when we are using SPSS, data must be numeric. It will give you a lot of ease in using this variable. So I preferably use this value, 1 for male and 2 for female. Under salary, if I am simply asking about the salary and people are telling me directly salary, for example, 50,000, 60,000, so there is no requirement of value because there is no category. In that case, this value remain blank. Missing, it is applicable to a data set where I can find some of the missing values. Maybe the moment you are getting the data from the respondent, some of the respondent would skip this question while filling up the others, and you detect this problem later on. There are 2 options. Number 1, you can create an average value and assign to that question, or otherwise give a separate code for it. Under missing, you can define a code which is very large, for example 3-number code, 999, and you will mark it like a missing value.
So this data of missing value can be evaluated separately, and this is a very natural thing that happen a lot of time when you are dealing with data set. There would be certain missing values. Then column and alignment. Column is about the how long it should be, and then alignment is right alignment or center or left alignment. Measure is very important. If you click on the measure, and when we do it on the data set, we'll show you that this measure will take you to three things. Under when you click on the measure, you will have three things. One is the nominal, second is ordinal, and third is scale. What are these three? These three are the different types of scale we use to understand the nature of data. So my data can be a kind of representative. For example, this 1 and 2 is nothing but the representation of male, and 2 is a representation of female. This data is nothing but the nominal data. In case of ordinal data, I am dealing with the rank. I'm asking people to give any sort of rank or any kind of order to the given variable. Any direct number like the salary, if somebody is quoting salary directly, scale will be the measure, right? So these are the three scales, three measures. Any question on this slide? No, sir. Okay, then I have a question. How many of you, and if I can see most of you, have gone through the statistics and research paper? Therein, you must have gone through a topic called scales. We had four scales: nominal scale, ordinal, and then interval, and then ratio scale. तो हमने जो पढ़ा है वो चार स्केल के बारे में पढ़ा है. एसपीएसएस हमको सिर्फ तीन के बारे में बता रहा है, और जो तीसरा है हमने पढ़ा ही नहीं है. व्हाट इज द मिस्ट्री हियर? लुकिंग एट द टाइम, मिस्ट्री ये है कि यहां पर इस स्केल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल और रेशियो को कंबाइन करके यूज कर रहे हैं एज अ स्केल मेजर. यानी एसपीएसएस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन interval scale and the ratio scale. Combinedly, it consider these two as one single called scale. So do not confuse कि जो क्लास में पढ़ाता और यहाँ जो कर रहे हैं वो अलग है. Is the same thing, and why they combine it? It is another story, right? On some other session or some other day we'll discuss it. So now, after having an understanding, let me just one more time review it. कि जो भी वेरिएबल आप ये बता रहे, हर वेरिएबल के लिए आपको 11 चीजें डिफाइन करनी फॉर एवरी वेरिएबल, राइट? तो मान लीजिए आपके पास 15 वेरिएबल है, तो आपने हर 15 वेरिएबल में से हर वेरिएबल को एक करके आपने डिफाइन करना है. जो वेरिएबल व्यू बनेगा उसमें यहाँ पे आपके पास 15 नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, तो समझिएगा, ये वेरिएबल व्यू में जो रो बनी हुई है मेरे पास, दीज रो, ये क्या बता रही है? दीज रो विल इंक्लूड वेरिएबल. ये वेरिएबल 1 2 3 कौन सा वेरिएबल, जैसे सैलरी हो गया, जेंडर हो गया, राइट, लोकेशन हो गया, एटसेट्रा. तो यहां वेरिएबल व्यू में ध्यान रखिएगा, वेरिएबल व्यू में रोज रिप्रेजेंट वेरिएबल, वेयर एज इन डेटा व्यू ये जो रो बनी हुई है हमारे पास में, दीज रो रिप्रेजेंट द रिस्पोंडेंट, जिन लोगों से आपने डेटा लिया है. यानी मान लीजिए आपने 50 लोगों से डेटा लिया है, तो इस डेटा व्यू में जो 50 रो बनेंगी, 50 रो, every row is basically representing a single individual respondent. तो दिस इज अ डिफरेंस कि वेरिएबल व्यू में और डेटा व्यू में क्या फर्क है. वेरिएबल व्यू में रोज रिप्रेजेंट वेरिएबल, इन डेटा व्यू रोज रिप्रेजेंट रिस्पोंडेंट्स, एंड इन डेटा व्यू column represent variable separately. In case of variable view, column represent 11 different measures that must be defined for every variable considered in data view. I hope it is clear. Please be interactive. I'm not asking a lot of questions, but yes, no, yes, no. Yes, sir. So only share this present here. Chaliye. Yes, sir. Somebody raise the hand. Anuj. Okay.
this we have already discussed, so I have already covered it कि वेरिएबल व्यू में वेरिएबल होता है रो के अंदर और कॉलम में हमारे पास डेटा आएगा, वो हर एक का रिस्पोंडेंट का रहेगा. नाउ स्पेसेस सिनेरियो, व्हाट इज दिस स्पेसेस सिनेरियो? तो ये जो हमने यहाँ लिखा ना, ये 11 जो हमारे पास में चीजें हैं, ठीक है, नेम टाइप, इनका क्या मीनिंग है, इनको लिखते समय में क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में बहुत शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन है. आई विल क्विकली गो थ्रू दिस वन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज नेम. तो नेम क्या बता रहा था? नेम यहां बता रहा है नेम ऑफ वेरिएबल. एग्जाम्पल के तौर पर जेंडर कुड बी वन वेरिएबल. ठीक है, तो जब आप कभी भी इसको डिफाइन करेंगे तो आप जो कैरेक्टर यूज करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर, राइट, अप टू, मेरे पास जो मैं यूज कर रहा हूं उसका वर्जन वो 20 है, 64 कैरेक्टर लॉन्ग आप नेम लिख सकते हैं. जैसे इसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, तो इट विल गुड टू गो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉट. जैसे मुझे लिखना है जेंडर ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जेंडर और फिर यहाँ अंडरस्कोर डालेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, एम्प्लॉय, विदाउट एनी गैप. और आप या फिर जेंडर डॉट एम्प्लॉय कर सकते हैं. तो ओनली अंडरस्कोर एंड डॉट, दीज टू आर allowed. Why these two are allowed? Because when you are writing the name of variable, you cannot have a gap in between. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि जेंडर ऑफ एम्प्लॉय, तो एरर शो कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दे रखा है, ये गैप आ गया है. तो उस गैप को हटाने के लिए क्या करेंगे आप, यू विल यूज अंडरस्कोर और यू विल यूज डॉट. तो जेंडर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, दिस कुड बी द. अब ये जो पूरा मिलाकर के आपका बनेगा, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 64 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए. इसीलिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, श्रिंक करना पड़ेगा, कोड देना पड़ता है, और उस कोड को फिर आप आगे चल के, मैंने बताया था, आप इसको लेबल में जाके डिफाइन कर देंगे, राइट. फोर्थ पॉइंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नेम मस्ट बिगन विद ए लेटर. यानी जो नाम होगा उसका पहला जो अक्षर होगा वो हमारे पास लेटर शुरू होगा, न्यूमेरिक शुरू नहीं होगा. यानी अगर मैं लिखना चाहूं 2023, राइट, सर्वे अंडरस्कोर सर्वे, तो देयर विल बी एरर, क्योंकि जो इसका रूल है वो ये कहता है कि शुरुआत आप इसकी कभी भी नंबर से नहीं करेंगे. द वेरी फर्स्ट लेटर इज ए काइंड ऑफ स्ट्रिंग, और सबसे पहला जो होगा वो नॉन न्यूमेरिक होगा हमारे पास में. तो सर्वे अंडरस्कोर 2023 ये लिख सकते हैं, बट आप इसको पहले नहीं ले सकते. दीज आर सम ऑफ द रूल्स, आई होप दीज आर क्लियर. Yes, sir. Okay, Sharad, you have a lot of responsibility to say yes, no, yes, no. Yes, Now next sir. is, Yes, sir. thank you. Now next is the type, right? Variable type include the numeric, string, scientific notation, date, dollar. I already told you कि इसको क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे. With represent length of the string in the character, right? Number of place before the decimal point, कितने कैरेक्टर लॉन्ग आपको चाहिए. डेसिमल बताता है कि नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितना इंक्लूड करना है आपको. एंड देन कम द लेबल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर लिमिटेशन है, नेम को डिटेल में नहीं लिख सकते, तो उसका डिटेल आप लिख दीजिए, और कितना भी लंबा लिख दी, पूरा क्वेश्चन आप इसे पेश कर सकते हो. यूज इट टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल, राइट. इफ यू विश यू कैन प्लेस द क्वेश्चन स्टेटमेंट हियर, अगर आपको लगता है. और आई विल शो यू कि ये होगा किस तरीके से. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके, हियर. तो मैंने यहाँ पर ना कोई लेबल दे दिया इसको, ठीक है. मैंने लिखा जेंडर ऑफ एम्प्लॉय. तो जब मैं अपने, और यहाँ पे लिखा है जेंडर, मैंने नाम दिया इसको मैंने जेंडर, या इसको मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, और यहाँ लिख दिया पूरा इसके मैंने जेंडर ऑफ एम्प्लॉय. और अब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ना जो लिखा है, ये कहाँ डिस्प्ले हुआ, तो यहाँ वेरिएबल जो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा जाएगा जेंडर, और जैसे अपना कर्सर होवर करके लाओगे इसके ऊपर, तो वो उस कर्सर होवर करते यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वो डिटेल जो आपने यहाँ पर लेवल में डिफाइन करी है. तो आपको रेफरेंस लेने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बार बार वेरिएबल व्यू में जाके चेक करो कि भाई इस कोड का क्या मतलब था. यानी यू मे राइट जस्ट अ जी ओनली, और आपको मालूम करना है जी क्या है, तो जहां जी लिखा उस पर सिर्फ कर्सर होवर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा. So this is how these all are connected. Now the missing value, I already discussed this one. इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं जल्दी से. मेजर मैंने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ में. मेजर का मतलब क्या होता था कि आपके पास जो स्केल है आपके पास वो कौन से वाला है, राइट. यानी आपने
स्केल ऑफ मेजरमेंट कौन सा इस्तेमाल किया है, एंड दिस स्केल एक्चुअली यूज कंबाइनली इंटरवल एंड रेशियो. कम टू दिस विंडो. अभी जो पहला हमने विंडो देखा था वो था हमारे पास डेटा एडिटर व्यू, और डेटा एडिटर व्यू में नीचे छोटी छोटी टैब्स हुआ करती थी. एक होती थी हमारे पास में वेरिएबल व्यू वाली और दूसरी थी हमारे पास में डेटा व्यू की टैब. ये यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू. इस फाइल का नाम देखेंगे ऊपर ध्यान से तो लिखा होगा IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स डेटा एडिटर. ये जो अगली हमारे पास में फाइल है ये बेसिकली आउटपुट की है. कहने का मीनिंग है कि जो भी एनालिसिस आप उस डेटा एडिटर में करेंगे या जो भी इंस्ट्रक्शन आप डेटा एडिटर के थ्रू इंसर्ट कराएंगे एसपीएसएस को, उसका जो डिस्प्ले होगा रिजल्ट का दैट विल अपीयर इन अनदर फाइल. ये फाइल जो होगी इसको बोलेंगे हम लोग, आप यहां देखेंगे लिखा हुआ IBM SPSS व्यूअर. यानी जब आप एसपीएसएस में डील करते हैं तो आपको दो फाइलें मिलती हैं. एक डेटा एडिटर वाली होगी जिसके अंदर दो टैब रहते हैं, दूसरा हमारे पास में आउटपुट की फाइल जिसको बोलते हैं हम IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स व्यूअर. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके No, sir. ओके, थैंक यू. सो इंपॉर्टेंट नोट जो अब तक हमने पढ़ लिया, सिंपल उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से. तो डेटा व्यू में ईच रो रिप्रेजेंट रेस्पोंडेंट, कॉलम रिप्रेजेंट वेरिएबल. वेरिएबल व्यू में ईच रो रिप्रेजेंट वेरिएबल, कॉलम रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल. ये इंफॉर्मेशन में क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन में 11 चीजें होती है, डिफाइन की जाती है, वो हमें डिस्कस करेंगे. एसपीएसएस का जो डेटा एडिटर है जिसमें आप डेटा इन कराएंगे, डेटा एडिटर का मतलब जिसमें आप डेटा की एंट्री करते हैं और जिसके थ्रू आप एनालिसिस कमांड प्लेस करते हैं, उसकी फाइल को जब सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन होगा .acv. ध्यान रखिएगा इसको. यानी दो फाइल सेव करके फोल्डर में पड़ी हुई है और मैं पूछता हूं इसमें से डेटा किस में है, तो आप फाइल का एक्सटेंशन देखेंगे. .acv का मतलब हो गया वो डेटा एडिटर. आउटपुट व्यूअर जो होता है उसका जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास .spv. राइट. तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि डेटा एडिटर का जो एक्सटेंशन है वो .sav होता है और आउटपुट का जो एक्सटेंशन है .spv होता है. Now working with SPSS data set. So any questions so far before I move to the data set? No, sir. No, sir. ओके चलिए. तो इससे पहले कि हम लोग जाके सीधा एनालिसिस पे जाएं, इसको याद रखिएगा हमेशा कि आप एनालिसिस एसपीएसएस पे कर रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज टू क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू हैव. आपको मालूम होना चाहिए आपका डेटा किस तरीके का है, क्योंकि ये डेटा किस तरीके का डिसाइड करेगा कि आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या यूज करने वाले हैं. राइट. एंड व्हाट यू वांट टू डू, आप करने क्या चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो भी अफेक्टेड होगा डेटा किस तरीके का. समटाइम यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप और नॉट रिलेशनशिप बट द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. बट यहां जो डेटा ले रखा है आपने, वो डेटा ले रखा है आपने फॉर एग्जांपल आपने नॉमिनल डेटा ले रखा है एंड नॉमिनल में आपने जो डेटा रखा है यस नो वाली कैटेगरी वाला ले रखा है. अब इस वाले डेटा पर आप और आपका जो दूसरा वेरिएबल है उसका आप इसको कोरिलेशन लेके जाना चाहते हैं, इट वुड नॉट वर्क. तो डेटा के हिसाब से ही आप उसकी एनालिसिस और आप क्या करने चाहते हैं इसमें सिंक्रोनाइजेशन आपको एज ए रिसर्चर समझना पड़ता है बिफोर यू जंप इनटू द एनालिसिस. इन दो क्वेश्चन के आंसर रहते हैं देन इट इज फाइन. तो मैं यहाँ भी हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पर. व्हाई आई प्लान दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट ऑफ यू are into your summer internship or may have completed your summer internship, and by the end of your summer internship probably you will be asked to write a report, and that report could have any sort of data analysis. And how you obtain this data? So there are number of methods, but one popular method is by creating questionnaire, and Google form has now created much ease in getting the data. तो आप करते क्या है कि एक क्वेश्चनर बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चनर को आप गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस गूगल फॉर्म का एक लिंक बनाते हैं और आप लोगों से शेयर कर देते हैं. दिस इज हाउ यू ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट. और आपके पास एक क्या आ जाती है, शीट आ जाती है डेटा की. आप उस डेटा की शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं एसपीएसएस के अंदर एंड देन यू विल डू द एनालिसिस. वो जो पूरा जितना मैंने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं एंड देन
the last part of the session will be about the analysis part. Any question? Okay. No, No, sir. Okay. So can we do ANOVA analysis in this? Yeah, Anmol? Can we do ANOVA analysis? Can we do ANOVA analysis? Right. Yeah, any sort of analysis, you can do it. Let me come to that point. Is this visible to you? Yes, Yes, sir. sir, visible. yes, sir. Yes, sir, it is visible. Okay. इसको थोड़ा मैंने और इसको इंक्रीज कर दिया इसकी परसेंटेज को। तो देखिए इसमें ना एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने की बात है कि कोई स्टूडेंट ने एक टॉपिक स्टडी किया है कि एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन क्या है आफ्टर फाइनल सेमेस्टर एमबीए करने के बाद। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे या स्टार्टअप शुरू करेंगे। आजकल ट्रेंड है, लोगों का एक मानना रहता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ दे माइट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो उसको थोड़ा मेजर करने की कोशिश है इस रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यू कैन सी पहला ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि साहब आपका नाम क्या है, राइट, एंड देन जेंडर हो गया, उसके बाद एज हो गया। अब एज में चाहते तो आप इसके अंदर कैटेगरी क्रिएट कर सकते थे। उदाहरण के तौर पे आप क्या कर सकते हैं इसमें कि एज में आप बनाते कि 20 ईयर टू 25 एंड देन 26 टू 30 इस तरह से एज क्रिएट कर सकते थे। बट आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपकी एज क्या है, तो इन ईयर्स वो अपना एज बता देगा, उसको लिखेंगे। देन आर यू प्लानिंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड आफ्टर योर एमबीए, यस नो का ऑप्शन आ गया, तो कैटेगरिकल डेटा हो गया। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर यहाँ मिसिंग करेंगे तो एनालिसिस में आपको या उसका डेटा का शीट डिजाइन करने में दिक्कत आएगी। तो ये दो मेरे पास इसमें कैटेगरिकल वेरिएबल जेंडर हो गया और ये आर यू प्लानिंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेट द परसेंटेज 0 से 100 के बीच में कि नेक्स्ट ईयर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। यानी दिस ईयर पर्सन इज कंप्लीटिंग द एमबीए और हम उससे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट चांस है कि आप बाय नेक्स्ट ईयर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो 0% है, 20% है, 50, ये हमने ऑप्शन दे दिया है। देन एस्टिमेट द परसेंटेज, वही फिर 0 से 100 के बीच में, विल यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन नेक्स्ट 5 ईयर टाइम। मे बी वो यहाँ 0 कर देता है, लेकिन अगले 5 साल का टाइम ओरिजिन दिया जाए कि ठीक है साहब, वो ये कह सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट सम एक्सपीरियंस, मैं जॉब करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट बिजनेस आइडिया आई कैन वर्क ऑन, एंड देन वो उसके बारे में सोच सकता है। तो एक क्वेश्चन डाल दिया हमने कि 5 वर्ष के बाद कितने चांस है कि आप अपना बिजनेस ओपन करेंगे। एंड देन स्टार्टिंग योर बिजनेस साउंड अट्रैक्टिव टू मी, कितना आपको अट्रैक्टिव लगता है ये आइडिया कि अपना बिजनेस शुरू करें। तो जो व्यक्ति बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसने जहां दोनों पे उसने 0% मार्क किया है, 0-10% मार्क किया है, ऑब्वियसली बात है वो लीस्ट अट्रैक्टिव रखेगा बिकॉज उसके लिए लगता है कि स्टार्टअप इज नॉट ए गुड आइडिया एज इन कंपैरिजन टू जॉब। तो ये एक उसकी हम इंटेंशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, राइट। एंड देन आई वुड प्रीफर टू फाइंड ए कंपनी ऑफ माय चॉइस फॉर ए जॉब देन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले उससे भाई कि आप ये बताइए कि वुड यू प्रीफर टू डू ए जॉब इन अ कंपनी वेयर यू वुड लाइक टू एज कंपेयर टू कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें। तो इस स्टेटमेंट को क्या एग्री और डिसएग्री करता है। इफ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपने 8 क्वेश्चन देखे, मैंने और क्वेश्चन नहीं बनाया इसके, सिंपल है सिर्फ ये, राइट, समझाने की बात है सिर्फ। तो इसमें आप पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन का अपना एक टाइप है, डेटा टाइप है। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, ये अपना कैटेगरी डेटा है, नॉमिनल मैं बोल सकता हूँ उसको। एज जो है वो कैसा टाइप है, कोई बता पाएगा मुझे? अगर आपने जो पहले स्लाइड्स पे समझाया तो आप यहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर पाए। एज हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि भाई एज क्या है। मान लीजिए उसने बोला कि साहब मेरी एज जो है वो 30 ईयर है। अभी 30 नंबर आया है, वो क्या किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या एग्जैक्टली वो अपनी एज बता रहा है?
exact age. अनमोल एग्जैक्टली अपनी एज बता रहा है। और अगर किसी ने लिखा 31, 32 तो यहाँ पर कोई कैटेगरी है नहीं। और ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो मेरे पास ये जो मेरा एज नाम का जो वेरिएबल है, इट इज बेसिकली स्केल। यानी आप इफ यू रिमेंबर, आई जस्ट मोमेंट, हमारे पास जो जब हम वेरिएबल व्यू में को डिफाइन करते थे, वहां हमको डिफाइन करना रहता था, 11 चीजें होती थी, उसमें एक होता था मेजर। तो वहां मेजर में डिफाइन करेंगे इसको हम लोग स्केल में, एंड इट इज बेसिकली स्केल वेरिएबल। तो ये आपको डिफाइन करना है ओवरऑल कुल मिलाकर के। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डेटा को हम लेकर के जाएंगे एसपीएसएस पे, इसका हमने 15-20 लोगों से हमने मान लीजिए क्वेश्चन फिलअप करा लिया है, और मैं इस डेटा को एनालाइज करना चाहता हूँ एसपीएसएस पर, तो क्या अगला स्टेप क्या होगा, राइट? तो फर्स्ट स्टेप हमने समझ लिया, आपको अपना एक क्वेश्चन बनाना है, डेटा कलेक्ट करना है। आई टेक यू टू दी, जस्ट ए मोमेंट, ये थोड़ा सा रहेगा शेयरिंग और फिर बाद में दोबारा शेयर करना। Is it appearing? Not yet, sir. Okay. So now it is appearing, sir. Okay, आ गया, ठीक है, थैंक यू। Now you can see, मैं थोड़ा इसको छोटा किया है स्क्रीन को हल्का सा, और ताकि तो दो शेयर नहीं होंगे ना। क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन थे, इफ यू रिमेंबर, वो क्वेश्चन थे हमारे पास जेंडर का, एज का। तो हमने यहाँ देखे ये वेरिएबल जहाँ लिखा रहा था बार बार VAR, इफ यू कैन सी माय कर्सर, तो VR की जगह अब क्या आ गया, वो नेम आ गया है, उस वेरिएबल का नाम जेंडर आ गया है, एज आ गया है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो आपको लिखा मिलेगा एज ऑफ स्टूडेंट। मैं एज ऑफ स्टूडेंट नहीं लिख सकता क्योंकि बड़ा बहुत लेंदी हो जा रहा था, तो उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब ये मेरे पास डेटा व्यू, यानी यहाँ मुझे डेटा एंटर करना है, ठीक है। और इसका वेरिएबल व्यू क्या होगा, तो यहाँ वेरिएबल व्यू को क्लिक करेंगे। इन दिस वेरिएबल व्यू यू कैन सी एवरी वेरिएबल हैज बीन डिफाइंड बाय यूजिंग रेलिवेंट मेजर। तो पहला जैसे हमारे पास सबका डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक है। आई कैन शो यू कि ये हमारे पास वेरियस टाइप्स होते हैं। तो देयर में बी सम साइंटिफिक नोटेशन काइंड ऑफ डेटा, देयर में बी डेटा ऑफ डेट्स, देयर में बी डेटा ऑफ सम करेंसी। तो जो भी डेटा आपके पास होगा, आप उसको अकॉर्डिंगली आप उसको डिफाइन कर देंगे उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग। एंड देन लेबल हमने इसमें आईडी दे दिया है, वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट यस ऑफ कोर्स इन केस ऑफ जेंडर मुझे डिफाइन करना पड़ा यहाँ पर ना, कि देखिए 1 का मतलब हो गया, यानी वैल्यू रखा 1 और लेबल दिया मैंने इसको एम की जगह मैं इसको मेल कर देता हूँ, मान लीजिए, राइट। 1 का मतलब मेल हो गया, और फिर मैंने 2 को किया, 2 का मतलब फीमेल, इसको चेंज किया, ओके किया। इफ यू गो टू दिस डेटा व्यू और जेंडर में जाएंगे, सिंगल क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे दोनों ऑप्शन आएंगे आपके पास में। तो मान लीजिए कि आपके पास पहला वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है A1। इफ यू रिमेंबर हम 1 यस हमने इसको नाम दिया, मान लीजिए फर्स्ट रेस्पोंडेंट है 1 कर दिया, सेकंड रेस्पोंडेंट 2 कर दिया, हमने आईडी दे दिया। और अब इसका जेंडर बता रहे हैं हम लोग। तो पहला जो व्यक्ति है वो मेल है, किस एज कैटेगरी का है वो, एज क्योंकि उसकी कैटेगरी नहीं तो हमने लिख दिया उसको 25। उसने यहाँ क्या रिस्पॉन्ड दिया है, उसकी प्लानिंग कितने क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए प्लान कर रहा है, उसने कहा यस। कितना चांस है कि नेक्स्ट ईयर वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा, तो 25%। 5 ईयर में कितना कर पाएगा, तो ये डेटा एंट्री होगी यहाँ पे। दिस इज हाउ यू विल फिल अप ऑल दीज। तो पॉइंट समझाने का ये है कि डेटा व्यू में एंट्री करने से पहले आपको वेरिएबल व्यू बनाना पड़ेगा, और जितने वेरिएबल है यहाँ पर लिस्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। और वैल्यूज आप वहां पर मेंशन करते हैं, इसमें कैटेगरीज बनी होती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा हमने, ये देखिए पूरा क्वेश्चन ही पेश कर दिया था हमने,
I would prefer to find a company of my choice for a job than to be an entrepreneur. और यहाँ पर हमने जाकर के उसको पूछ लिया है, 1 रिप्रेजेंटिंग स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल। तो ये सारे ऑप्शन हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी है, क्योंकि एसपीएस से जो कैलकुलेशन करेगा वो वैल्यूज पे करेगा। तो आई होप कि अब ये मालूम हो गया है कि हमको डेटा एंट्री कैसे करना है। क्लियर है? सर यस सर। थैंक यू सो मच। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास अगर ऑलरेडी मान लीजिए कोई फाइल में डेटा अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास एक्सेल की फाइल है या दूसरी कोई फाइल है, तो आप यहाँ पर जाकर के फाइल में जाएंगे, राइट, और ओपन करेंगे, ओपन डेटा। तो यहाँ पाएंगे कि आपके पास कुछ यहाँ ऑलरेडी ना .sav सेलेक्टेड रहेगा। तो आपकी फाइल मान लीजिए एक्सेल में है, तो आप यहाँ पे एक्सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर कोई फाइल एक्सेल की होगी, जैसे यहाँ ही फाइल हमारे पास एक्सेल की है एक फाइल, तो मैं इसको ओपन करूंगा, तो दिस फाइल विल ओपन। अभी कह रहा, देखिए इंपॉर्टेंट है कि रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा। तो एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि जब आप अपने एक्सेल में डेटा, कई बार क्या होता है ना कि हम एक्सेल में डेटा ले रहे हैं तो कॉलम को हम ठीक से डिफाइन नहीं करते हैं। तो जब आप उसको यहाँ स्पेस में लेकर के आएंगे, तो बेसिकली ये जो नेम होगा वेरिएबल का, वो फर्स्ट रो ऑफ डेटा यानी वो कॉलम की हेडिंग से लेने वाला है। तो उसको ध्यान रखेंगे। यस, ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ गया है। इफ यू कैन सी, वो एक्सेल की फाइल का डेटा जो होता है, आई शो यू द फाइल इन एक्सेल। लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन, आई होप दैट विल वर्क बेटर। If you can see, this is the Excel file, right? तो ये डेटा हमारे पास जो होता है ये एक्सेल की शीट में, तो पहली जो रो है मेरे पास में, दिस इज द फर्स्ट रो, ठीक है। वो पूछ रहा था जब वो ओपन कर रहा था कि क्या वो फर्स्ट रो की हेडिंग से वेरिएबल का नाम डिसाइड कर ले। तो ध्यान रखेंगे, आपका जो डेटा है उसकी फर्स्ट रो में जो वो डेटा है उसकी हेडिंग ही होनी चाहिए, राइट। तो आप देखेंगे तो आई शो यू हियर, I hope this was the data. If you can compare it, ये मेरे पास SPSS और ये मेरे पास में Excel की फाइल है। तो ये मैं देखूं तो यहाँ पे ID, जेंडर, एजुकेशन, जॉब कैटेगरी, सैलरी, वो सेम है। उसने यहाँ से हर एक फर्स्ट रो को उसने यहाँ पर कॉलम की हेडिंग बनाकर उसको वेरिएबल का नाम दे दिया है, ठीक है। तो यू कैन सिंपली इंपोर्ट डेटा फ्रॉम दी एक्सेल शीट। तो दो चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। डेटा को एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं, .csv फाइल है तो भी चलेगा, क्योंकि आप जब गूगल फॉर्म से डेटा लेंगे तो जो डाउनलोड करेंगे, यू शुड एक्चुअली डाउनलोड इट एज एक्सेल फाइल। बट अगर आपने .csv फाइल भी ले लिया है, कॉमा सेपरेट फाइल, तो भी इस पे वो काम करेगी। एंड देन द डेटा इज रेडी फॉर योर एनालिसिस। एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम एक्सेल से डेटा को यहाँ लेकर के आते हैं, तो डेटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ना उसका वेरिएबल भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब जेंडर में यहाँ वैल्यूज डिफाइन नहीं है, राइट, इफ यू कैन सी हियर। तो जबकि मेरे पास यहाँ जेंडर में वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है, जेंडर में वैल्यूज है 1 और 2। अभी 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं है। तो मुझे एसपीएस को बताना पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल काम आपको करना होगा कि जब आप डेटा को एक्सेल से इंपोर्ट करके लेकर आएंगे यहाँ पर, तो वेरिएबल व्यू में जाकर के यहाँ बताएंगे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जहाँ 1 लिखा है उसको आप बोल देंगे इसको मेल कंसीडर करें, ऐड करेंगे। जहाँ 2 लिखा है उसको आप बोलेंगे फीमेल कंसीडर करें, ऐड करेंगे, ओके करेंगे, कम टू डेटा व्यू। एंड ये देखेंगे यहाँ पर, इफ यू सी माय कर्सर, 1 एंड ए करके लिखा हुआ है, तो ये कन्वर्जन बता रहा है वैल्यू लेबल, वैल्यू और लेबल के बीच में। तो क्लिक करूंगा तो जेंडर में देखिएगा ध्यान से, ये जेंडर वाले में क्या हो रहा है, हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जॉब कैटेगरी में अगर मेरे पास में कोई कैटेगरी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर ऑब्वियसली कैटेगरी है क्योंकि 3 ही वैल्यूज दिख रही है मुझे, 1 और 2 और 3, तो मुझे बताना पड़ेगा यहाँ वेरिएबल व्यू में जाकर के कि ये जो जॉब कैटेगरी है भाई, इसमें 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। क्या 1 मैनेजर है, 2 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, 3 एम्प्लॉय है, क्या है वो, उसकी पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन। तो ये एडिशनल काम वो करना होगा। विदाउट डिफाइनिंग द वेरिएबल व्यू, योर डेटा इन द डेटा व्यू इज ऑफ नो यूज फॉर एनालिसिस। दिस इज सिंपल, राइट। तो यहां तक हमने कर लिया है, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार?
No, sir. Just give me 1 second. Okay, sir. ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास एक डेटा फाइल है, इसमें एम्प्लॉयज का डेटा है। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर इन, we go to variable view, right, and we'll count there are 10 variables id to minority। तो डेटा व्यू में जाते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि जो हमारे पास टैब्स हैं, इन टैब्स का हम लोग काफी यूज करने वाले हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टैब का से एनालाइज टैब है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी एनालिसिस जो आपने पढ़ी है स्टैटिस्टिक्स में वो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो सिंपल करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो यू गो टू एनालिसिस, यानी डेटा व्यू में जाएंगे, डेटा व्यू में आप एनालाइज पे जाएंगे, एंड यू देन गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, गो टू द डिस्क्रिप्टिव, देन क्लिक ओवर हियर। तो यहाँ जितने भी आपके पास वेरिएबल थे, राइट, कितने वेरिएबल थे हमारे पास, 10 वेरिएबल थे, वो यहाँ पर हमारे पास लिस्टिंग में आ गए हैं, ठीक है। अभी जिस वेरिएबल को मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI यही है कि आप क्लिक्स पर काम करेंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, आपको फार्मूला राइट नहीं करना, एंड एवरीथिंग इज ए मैटर ऑफ सेकंड, जो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मुझे मालूम करना है यहाँ पर कि जो सैलरी है यहाँ पर, नहीं, जब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, ये रहा, आप अगर इसमें वेरिएबल देखेंगे बिगिनिंग सैलरी, बिगिनिंग, तो तब सैलरी कितनी और करंट सैलरी कितनी है, यानी मैं इसमें एक देखना चाहता हूँ मीन सैलरी कितना फर्क आया। तो करंट सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी, इनको मैंने सेलेक्ट किया दोनों को और इधर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। ये वेरिएबल जिन पे मुझे काम करना है वो यहाँ पे मुझे लेके आने होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिस्टिंग है वो मेरे डेटा शीट से अटैच्ड है, यानी जो मेरा ये डेटा शीट है इसमें जो जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले पर आएंगे। I'll go to the option, यहाँ आप टैब देख रहे होंगे ऑप्शन का, I'll go to this टैब ऑप्शन, और यहाँ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कुछ टिक ऑलरेडी लगे हुए हैं, राइट। मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट, वो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। बट इफ यू डोंट वांट मिनिमम मैक्सिमम, तो आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं। बट यस आई वांट कि देखें मिनिमम मैक्सिमम कितना मिल रहा है, इसको कट ऑफ से स्क्यूनेस भी निकाल सकते हैं आप इसके अंदर, इफ वांट टू चेक द डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल कंटिन्यू करेंगे एंड विल प्रेस ओके। अब इसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, कौन बताएगा मुझे? Sir, in the output? हाँ, तो आउटपुट कहाँ पे मिलेगा वो आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? Sir, variable view? लो वेरिएबल पे आए थे, हमने क्लिक किया वेरिएबल व्यू, यहाँ तो नहीं आया, है ना, देखिए नहीं यहाँ पर। इट्स ए ओपन क्वेश्चन टू ऑल, जब आप SPSS पे काम करते हैं तो कितनी फाइल ओपन होती हैं एक सिंगल एनालिसिस के लिए? आई होप कि कम स्टूडेंट एक्टिव है, बट शरद ओनली फॉर यू एंड फ्यू अदर्स जो कि एक्टिव है उनके लिए। देखिए ये जो मेरे पास इस वक्त ओपन है, जिसमें डेटा एंट्री कर रखा है, मैंने आपको बताया था दो आपके पास फाइलें होंगी, एक होगी हमारे पास डेटा एडिटर, और डेटा एडिटर में दो व्यू रहेंगे, डेटा व्यू जिसमें डेटा इंसर्ट किया जाएगा, वेरिएबल व्यू जिसमें उन वेरिएबल को डिफाइन किया जाएगा जिनका डेटा आपने लेना है। जब आप एनालिसिस Okay. परफॉर्म करते हैं
एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद एक नई फाइल ओपन होती है, कहते हैं डेटा आउटपुट व्यूअर। इफ यू कैन सी दिस वन, ये है मेरे पास डेटा, IBM SPSS स्टैटिस्टिक व्यूअर। यहां पर मेरे पास में इसको मैक्सिमाइज ये है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यहां मेरे पास से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होकर आ गया। हमने क्या किया अभी, हमने वही निकाला ना कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मीन कितने और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ये कैलकुलेट होकर दो वेरिएबल लेते हमने, करंट सैलरी, बिगिनिंग सैलरी। कितने लोगों का डेटा था, तो जिस डेटा सेट में काम कर रहे थे उसमें सैंपल जो साइज जिन लोगों का लिया गया वो था 474। इफ आई गो बैक टू दैट फाइल एंड गो टू द डेटा व्यू एंड ट्राई टू सी कि कितने लोगों का डेटा था, तो यू विल फाइंड दिस डेटा इज ऑफ 474 पीपल। और क्या किया था हमने, वी वेंट टू द एनालाइज, देन डिस्क्रिप्टिव, ये हमारे पास में दोनों वेरिएबल हमने ले लिए। ऑप्शन पे गए हम जाकर के और हमने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम यही वैल्यू लिए ना, कंटिन्यू किया। उसने उसको जाकर के कहां पे दिखाया हमको उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट दिखाया उसने हमको आउटपुट व्यूअर के अंदर। ठीक है, अभी इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाई इट इज एसेंशियल। इफ यू कैन सी द डेविएशन इन द करंट सैलरी इज 17,075, whereas बिगिनिंग सैलरी में डेविएशन उतना नहीं है। बिगिनिंग सैलरी में डेविएशन है 7,870 का। तो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अब मैं इसको किसी को बताऊं तो क्या बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू प्रेजेंट द मीनिंग ऑफ दिस डेटा। अब यहां पर ये SPSS हेल्प नहीं करने वाला, नीदर SPSS नॉर योर एक्सेल और एनी अदर सॉफ्टवेयर। यहां आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ही काम आने वाली है कि भाई इसका मतलब क्या है। इफ यू आर प्रेजेंटिंग दिस डेटा टू द पीपल अराउंड यू, व्हाट यू विल से, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है कि आपका जो डेटा है वो हाउ मच इट इज कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन वैल्यू, है ना। मीन वैल्यू के आसपास वो कितना कंसंट्रेटेड है, कितना उसमें डेविएशन लेसर और ग्रेटर है, उसको इम्पोर्टेंट वो मेजर करता है। तो अब यहां हम देखें तो इसमें काफी ज्यादा वो स्प्रेड आ रखा है एज कंपेयर टू दी बिगिनिंग सैलरी। तो इससे दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि इन योर डेटा सेट देयर मे बी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर ड्रॉइंग हायर सैलरी, राइट। वो कैलकुलेशन में वो पढ़ा ना, मीन में आपने की अगर आउटलायर वैल्यूज होती हैं तो वो मीन को भी अफेक्ट करती हैं। क्लास में अगर एक बच्चे के 80% मार्क्स हैं और बाकी सब बच्चे जो है वो 60 और 50 वाले रेंज में है, तो क्लास का एवरेज बढ़ जाएगा उस एक बच्चे की वजह से, अगर मीन लूंगा तो। सिमिलरली सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, अगर एक एम्प्लॉय का जो सैलरी फिगर है बहुत एक्सेप्शनली हायर है बाकी के कंपैरिजन में, तो उसका मीन जो निकल के आने वाला है वो हायर साइड पर आ जाएगा, एंड दैट विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट अ रॉन्ग पिक्चर। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द, आई वुड से, करेक्ट मेजर ऑफ सैलरी। सैलरी को मेजर करने का मीन कम से कम एक सही माध्यम नहीं है। व्हाट इज द राइट वे टू मेजर और अंडरस्टैंड दी और टू एनालाइज द डेटा ऑन सैलरी, है कोई? Anybody in the class? Calculate the salary of all the employees. वही तो किया हमने यहाँ पे, हर एम्प्लॉय की एवरेज salary। निकाल रहे हैं ना हम लोग तो। तो आप क्या क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? अच्छा, इस डेटा से आई एम सरप्राइज, मैंने क्वेश्चन पूछा आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इफ यू कैन सी, मैंने कहा ना कि कुछ एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एक्सेप्शनली हाई है। अब देखिए मिनिमम कितनी है, $15,750 ऑन मिनिमम साइड में मिल रहा है। मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1,35,000। यू कैन सी द डिफरेंस इज ह्यूज डिफरेंस। और इसीलिए क्या हो रहा है हमारे पास, इस एक्सेप्शनली हाई वैल्यू की वजह से ये मीन बढ़ गया और डेविएशन पे फर्क आएगा क्योंकि डेविएशन जब कैलकुलेट करते हो तो वह मीन से ही करते हो। उसे याद है ना फॉर्मूला, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू माइनस
मीन वैल्यू का इसका आप स्क्वायर ले लेते जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय। तो व्हाट इज द, अनमोल बताइए फिर क्या कैलकुलेट करें? No idea, sir. मतलब नहीं, ये देखिए ना, ये सैलरी का डेटा है, ये जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ कॉलम को, हर एक इंडिविजुअल सैलरी लिखी हुई है। अब मैं क्या करूँ सैलरी के डेटा पर? तो याद रखिएगा, इसका एक बेस्ट तरीका रहता है कि आप इसके अंदर आप मीडियन कैलकुलेट करें। ठीक है, मीडियन कैलकुलेशन के तरीके में और मीन के तरीके में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट मीडियन? यू अरेंज द डेटा इन ए ऑर्डर, है ना? आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एंड देन यू फिगर आउट दी मिड पॉइंट। इसीलिए हम उसको पोजिशनल एवरेज बोल देते हैं, आपको याद हो तो। मीडियन को हम दूसरा नाम देते हैं पोजिशनल एवरेज का, कि सेंटर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है। तो आपने क्या किया कि दोनों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने से क्या होता है कि एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू को आपने एक्सट्रीम पे भेज दिया है और उसका बीच का पॉइंट आपने उठा लिया है। तो जब भी आप सैलरी पर कैलकुलेशन कर रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रादर गोइंग फॉर द एवरेज अरिथमेटिक मीन, इट इज बेटर टू गो विद द मीडियन। अब चलो मीडियन निकाल लेते हैं एंड विल सी कि मीडियन पे क्या फर्क आता है। वी गो टू, क्या करेंगे, कहां जाएंगे? ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हाँ, हम यहाँ एनालाइज पे गए, डिस्क्रिप्टिव पे गए एंड देन डिस्क्रिप्टर दोबारा जाते हैं, फिर ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ से एंड जस्ट ट्राई टू सी कहीं पे मीडियन लिखा है क्या? मीडियन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये भी मालूम होना चाहिए, मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कौन सा ऑप्शन मुझे कहां मिलेगा। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में ढूंढ रहे। तो इसलिए एवरी सॉफ्टवेयर नीड अ प्रैक्टिस, एक्सेल हो, एसपीएसएस हो, आर हो, किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको रेगुलर टच में रहना, याद रहे कि कहां से ऑप्शन मिलेगा। तो नाउ यू गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे चले जाएंगे। इस बार आप फ्रीक्वेंसी पे हम किसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं? सैलरी, करंट सैलरी एंड जो सैलरी उनकी बिगिनिंग में थी। वेरिएबल को सेलेक्ट किया, वी गो टू द स्टैटिस्टिक्स एंड हियर यू कैन सी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। You can see the dispersion of minimum, maximum, standard deviation, variance, range. You can see the outlier values. तो सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यानी इससे एक अंडरस्टैंडिंग मेरी क्या डेवलप होती है कि स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के ही पार्ट है ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना और डिस्पर्सन मेजर करना, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं किताब पढ़ाते समय। राइट, तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल सिंपली क्लिक ऑन द मीडियन, continue and okay. Now you can see the median salary, जो करंट सैलरी जिन लोगों की है, करंट सैलरी का डेटा उसमें 28,000 आ रहा है और बिगिनिंग वालों 15,000 आ रहा है। Now this is showing the difference। जो 34,000 समथिंग आ रहा था वो यहाँ पे 28 आ गया है, तो काफी फर्क है इसके अंदर एंड दिस विल चेंज द सिनेरियो। राइट, तो एक पॉइंट हमको समझ में आ गया कि यस, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज अगर मुझे निकालनी है जिसमें मीन, मीडियन, मोड आता है, डिस्पर्सन निकालना है जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, ये सब चीजों को निकालने के लिए आप कौन से वाला टैब एक्सप्लोर करेंगे? एनालाइज। और कहा जाएंगे एनालाइज से आप? डिस्क्रिप्टिव एंड देन फ्रीक्वेंसी एंड देन यू पिक अप योर वेरिएबल एंड यू डिसाइड कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अभी यहीं पर ना हम एक काम और करते हैं। इफ आई वॉन्ट टू जस्ट सी की जस्ट गो टू दी, यस, आई कैन सी कि यहाँ पर जो मेरे पास जॉब कैटेगरी है, कितनी जॉब कैटेगरीज है? तो जॉब कैटेगरीज मेरे पास है यहाँ पर 3 कैटेगरीज है ना, मैनेजर, कस्टोडियल एंड क्लरिकल। तो अभी मैं चाहता हूं कि इसमें से मेरे पास ना मैनेजर की सैलरी नहीं का डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा जो रहे वो क्लर्क का और कस्टोडियल का रहे। कैसे करेंगे उसको? करने का तरीका ये है, आई विल गो टू दिस डेटा टैब। ठीक है, डेटा टैब पर जाने के बाद
बट उससे पहले मुझे काम और करना है. आई विल गो टू दिस डेटा व्यू एंड आई विल गो टू डेटा, राइट, एंड देन सॉर्ट द डेटा, सॉर्ट द केसेस. और मैं सॉर्ट कर लेता हूं उसको जॉब कैटेगरी से. जॉब कैटेगरी इज here it is, right? और मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता हूँ, यानी अल्फाबेटिकली जो मेरा डेजिग्नेशन है, मैनेजर, कस्टोडियन एंड क्लर्क, अल्फाबेटिकली वो उसको क्या करेगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी Z टू A की साइड में अरेंज कर देगा. ओके करते हैं. When I do this, now you can see this one. तो सारे के सारे मैनेजर का डेटा ऊपर आ गया, ठीक है. फिर सभी के सभी कस्टोडियल का डेटा आ गया, लास्ट में फिर मेरे पास क्लर्क का डेटा आ गया. अब मैं चाह रहा था कि इस डेटा सेट में मैनेजर्स का डेटा मेरे पास नहीं आए और जो कैलकुलेशन हो उसमें सिर्फ कस्टोडियल और क्लर्क, इन दो का डेटा रहे. उसको कैसे करेंगे? फॉर दिस आपको एक काम और करना रहेगा. यू गो टू डेटा एंड यू गो टू दिस सेलेक्ट केसेस, क्योंकि आप केसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी ऐसे केसेस, केसेस का मतलब है यहाँ पे रिस्पोंडेंट से. यू वांट ओनली दोज रिस्पोंडेंट हु ईदर आर द क्लर्क और द कस्टोडियन. यू गो टू सेलेक्ट केस. अब यहां पे वो कह रहा है कि क्या करना है सेलेक्ट में, ऑल केसेस नहीं, राइट. सो go to the range. ठीक है, वाई रेंज? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जब मैं डेटा को अपना, एक मिनट, अरेंज किया तो पहले नंबर से लेकर के, दिस द फर्स्ट नंबर मैनेजर का, यहां से लेकर के फ्रॉम द फर्स्ट टू दिस 84, ये मेरे पास सारे के सारे मैनेजर है. मैं चाहता हूं कि 1 to 84 का डेटा मेरे एनालिसिस में नहीं आए. आई वांट द डेटा फ्रॉम 85 से लेकर के और लास्ट में 474 तक. तो आई नाउ गो टू डेटा, सेलेक्ट केस एंड देन बेस्ड ऑन द रेंज. रेंज क्या है? पहला केस मेरे पास कौन सा हो? द फर्स्ट केस शुड बी 85. तो यहां पर मैंने 85 किया और लास्ट केस मेरे पास होना चाहिए 474 और इसको कंटिन्यू कर देते हैं. ठीक है, और इसको हमने ओके कर दिया, राइट. अभी आई हैव टू गो टू द डेटा एंड यू कैन सी हियर, इधर देख रहा है कट लगा हुआ है, यानी इसने क्या किया है, एसपीएस की फाइल ने, जो आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया उसने उनको सबको क्या किया, हटा दिया डेटा को, और उसने क्या सेलेक्ट किया है, इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया. एंड वी डू द सेम कैलकुलेशन. अभी कुछ नहीं करना है, एनालाइज पे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे जाते हैं, राइट. और वही हमारे पास सेम ऑप्शन में ले रखे हैं. ठीक है, कंटिन्यू किया, ओके किया. अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं. ठीक है, यू कैन सी कि यहां पर मेरे पास जो सैलरी आ रही है वो 390 लोगों की है, राइट. और यहाँ जो डेटा था मेरे पास 474 का था, यानी वो जो मैनेजर वाले रैंक के लोग थे उसमें इंक्लूड नहीं किए गए. एंड हियर नाउ यू कैन सी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया है. देयर इज सम इशू विद द सैलरी ऑफ मैनेजर्स विच प्रोबेबली आर वेरी वेरी हाई, क्योंकि रैंक हाई है तो उनकी सैलरी हाई है, इसलिए डेटा में इतना डिस्क्रिपेंसी आ रही है. तो ये आपकी स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि उसको कैसे डील करना है, और सॉफ्टवेयर को आप कितना समझते हैं वो आपको बताएगा कि उस जो आप करना चाहते हैं उसको करना किस तरीके से. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ चल के अब इसको अगर मैं दोबारा से सारे केसेस सेलेक्ट नहीं करूंगा, हर एनालिस्ट में वो क्या करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू एनालाइज एंड फ्रीक्वेंसी, जेंडर, सॉरी और जेंडर, एक्सपीरियंस का एक मंथ सिंस हायर. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मैंने इसको रखा सिंपल, इसका मीन और मीडियन. कंटिन्यू, ओके. तो अब देखिएगा इसमें मेरे पास में वही कितने लोगों का इसने डेटा को
एनालाइज किया है ओनली 390, जबकि मेरा पूरा डेटा सेट कौन सा था वो 474 का। तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू गो बैक टू दिस डेटा, देन मुझे सेलेक्ट केसेस में जाना है और मुझे इसे बोलना है कि भाई सेलेक्ट ऑल केसेस। तो जो पहला ऑप्शन था उसमें दोबारा सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट ऑल केसेस, और मैं अब जाकर के इसको ओके करता हूं। इफ आई नाउ रिपीट दिस एनालिसिस, ठीक है, आप एनालाइज में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, ठीक है, मंथ सिंस हायर यानी आपका कितना अनुभव है उसको उन्होंने मीन निकाला है, स्टैटिस्टिक्स में आपने वही सेलेक्ट कर रखा है मीन को, कंटिन्यू, ओके। नाउ यू कैन सी सारा का सारा जो हमारे पास सैंपल था पूरा आ गया 474 का, यानी इस बार उसने कैलकुलेशन में क्या किया होगा, वो जो पहले हटा रखे थे केस उनको इंक्लूड कर लिया है। दैट कैन बी कंफर्म ओवर हियर। नाउ देयर इज नो मोर क्लैशेस हियर, ठीक है। तो ये दीज आर, तो हमने अभी क्या सीख लिया है, वी हैव just a moment. Hello. Okay, so हमने अभी तक क्या सीख लिया है, under the analysis part we have seen कि by using this SPSS how to calculate mean, median, standard deviation, mode, maximum value, minimum value, ये कैसे कैलकुलेट करना है। और हमने ये भी देखा कि आपको केसेस सॉर्ट कैसे करने हैं, राइट। अभी हमने देखा था कि डेजिग्नेशन, अभी जैसे यहाँ मेरे पास आ गया आईडी, अभी सारे केसेस क्या ना, मैं दोबारा से चाहता हूँ कि आईडी 1 2 3 सीक्वेंस से आ जाए, तो मुझे सॉर्टिंग करना है। आई विल गो टू डेटा एंड सॉर्ट केसेस। अभी इसको हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, और इस बार हम एम्प्लॉय कोड, जिसको आईडी बोल रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ रखते हैं और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, ओके। यू कैन सी द डेटा इज नाउ अगेन इन द सेम फॉर्मेट, जो मैंने शुरुआत में फाइल ओपन किया था उसी में आ गया। तो हमने सॉर्ट करना सीखा, कैसे हम सॉर्टिंग करेंगे, फिर हमने केसेस सेलेक्ट कैसे करते हैं वो सीखा कि केसेस सेलेक्ट कैसे किए जाएंगे, एंड नाउ वी मूव टू दी, हमने मीडियन कैसे कैलकुलेट करना, तो पता चला कि सारे ऑप्शन हमको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में नहीं मिलेंगे, हमको वी कैन मूव ऑन टू द फ्रीक्वेंसी टैब एज वेल, वहां जाकर भी आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। एक और चीज है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टुगेदर, बार बार आपको ये सेलेक्ट ना करना पड़े, फॉर दैट पर्पस वी हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड एक्सप्लोर। You go to analyze, right? Go to analyze, descriptive statistics, go to explore. Now, for example, current salary and beginning salary, मैं इसी को लेता हूँ under the dependent list, right? And descriptive हमने इसमें select कर रखा है कि we want descriptive to be calculated. तो descriptive में जितने से भी चीजें होती थी वो सभी इसमें calculate होकर के आ जाएंगी। Do I want plots, यानी क्या मैं इसके कुछ ग्राफ भी चाहता हूँ, तो आप यहाँ प्लॉट डिफाइन करेंगे, हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं कि नहीं, स्ट्रीम एंड लीव डायग्राम बनाना चाहते हैं कि नहीं। इफ यू डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ डायग्राम, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसको स्टैटिस्टिक्स को सेलेक्ट करके रखेंगे डिस्प्ले में। यू गो टू दिस डिस्प्ले एंड सेलेक्ट ओनली स्टैटिस्टिक्स, तो टेबल्स ही मिलेंगे आपको। यू प्रेस ओके, नाउ हियर इट इज, यू कैन सी करंट सैलरी का जितना भी डिस्क्रिप्टिव है, मीन 5% ट्रिम्ड मीन, यानी अपर साइड लोअर साइड हटा करके उन्होंने लिख लिया है, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सब कैलकुलेट करके दे दिया आपको। सिमिलरली बिगिनिंग सैलरी का एक और चीज कर सकते हैं इसमें, यू गो टू दिस एनालाइज अगेन, एक्सप्लोर, फैक्टर लिस्ट। तो आप चाहते हैं कि आपको जेंडर वाइज या आपको मान लीजिए जॉब कैटेगरी वाइज चाहिए कि कैटेगरी वाइज मीन किस कैटेगरी में ज्यादा किस में कम है, तो यू नाउ कैन प्रेस ओके। तो आपने फैक्टर लिस्ट में क्या सेलेक्ट करना है, फैक्टर लिस्ट में आपने कैटेगरिकल वेरिएबल सेलेक्ट करना है जो ऊपर डिपेंडेंट लिस्ट की कैलकुलेशन को कैटेगरीज वाइज कैलकुलेट करके दे दे। मे बी यू कैन सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ओके। नाउ हियर यू कैन सी करंट सैलरी क्लैरिकल की मीन कितना है, ये रहा, कस्टोडियल की मीन कितना है, ये रखा, यानी वो सारी वेरिएबल, वो सारी चीजें
जैसे थोड़ी देर पहले हमारे को जो कैलकुलेट करके दी थी वो करंट सैलरी की दी थी विदाउट कंसीडरिंग द कैटेगरी, राइट? नाउ यू हैव द कैटेगरी वाइज डेटा एनालिसिस ऑफ करंट सैलरी, राइट? नाउ यू कैन सी बिगिनिंग का भी और करंट सैलरी का भी। सिमिलरली इफ यू वांट कि मेरे को जेंडर वाइज देखना है कि मेल और फीमेल में कितना फर्क आ रखा है, यू वांट टू एक्सप्लोर दैट वन, तो रादर टेकिंग द employee category as a factor, you can take the gender under the factor list, press OK. Here you have current salary, मेल का कितना आपका मीन आ रखा है और फीमेल का कितना मीन आ रखा है, this is here. You can see the mean value of male वो कितना रखा है 41,000 समथिंग और फीमेल का कितना रखा है 26, यानी कि फीमेल आर अर्निंग लेस एज कंपेयर टू मेल एट प्रेजेंट इन दिस डेटा सेट, ठीक है? तो ये आपके पास एक्सप्लोरेशन करने का तरीका है, यू कैन डू दिस। आई होप नाउ few things are clear about the data analysis and Yes, sir. you have witnessed कि Yes, sir. it's very easy, आपको कुछ करना नहीं है खास, सिंपल क्लिक्स करने हैं आपको, right? Yes, sir. Now we move on to some other interesting aspect, जैसे कि डायग्राम्स कैसे बनना है ना। मान लीजिए मुझे एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, तो हिस्टोग्राम को कैसे प्लॉट किया जाएगा, तो सेपरेटली कहां से जाके इसको हम करें, तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड ग्राफ। अब एक चीज और देख रहे होंगे आप, इफ यू नोटिस मी, आई एम नो मोर गोइंग बैक टू दी दिस टेबल, बार बार मैं यहां जाकर के एनालाइज को एक्सेस नहीं कर रहा हूं। मैं व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मेरा जो आउटपुट की फाइल है मैं यहीं से कमांड दे दे रहा हूं उसको, यहीं जाकर के। पॉइंट ये है कि जो आउटपुट की फाइल है इट इज कनेक्टेड एट द बैक एंड टू दिस फाइल ऑफ डेटा, उससे जुड़ी हुई है, तो यू कैन गिव द सेम कमांड। आई गो टू द ग्राफ, यहां देखेंगे आपके पास ऑप्शन है चार्ट बिल्डर, तो ये आप खुद डिफाइन करेंगे। ओके करते हैं, तो आपको क्या ड्रॉ करना है, तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। यू कैन पिक अप द सिंपल वन, इसको ड्रैग करके यहां लेकर के जाएंगे एंड देन यू विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक तरीका ये है आपके पास में। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आई जस्ट क्लोज इट। द सेकंड वे इज you have some legacy dialogues here wherein you have the options, most of the options which we usually refer to do some sort of illustration, visualization के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो my purpose is to draw a histogram, so here I can see the histogram at the bottom, I click over here, तो मुझे डिफाइन करना है भाई किस वेरिएबल का आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे शुरुआत में जो सैलरी मिल रही थी लोगों को उसी का बनाना है। आई सेलेक्ट इट, राइट, एंड देन सिंपली प्रेस ओके, कुछ नहीं करना है। हियर इज द हिस्टोग्राम, और साथ में आपको वैल्यू बता के दे रहा है कि इसकी मीन कितना था, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था, और कितने लोग का एनालिसिस डेटा है ये। दिस इज हियर, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट टू प्लॉट, अच्छा इसमें आप चाहते हैं कि इसमें एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेल शेप आता है जो, यू वांट दैट कर्व टू बी एडेड ऑन दिस हिस्टोग्राम। क्या करेंगे उसके लिए, यू सिंपली डबल क्लिक ओवर इट। डबल क्लिक किया आपने, इफ यू कैन सी हियर, ये मेरा कर्सर ध्यान से देखिए, हियर इट इज शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लिक किया, अपीयर हो गया है, राइट। इज दिस ओके? तो हिस्टोग्राम विद द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नाउ रेडी। कितना समय लगा करने में इसको, जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक ओनली, राइट। सिमिलरली if I want to draw a bar chart, go to the graph, legacy and bar, ठीक है, the first option, और simple clustered डिपेंडिंग ऑन, अगर आप पास में दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कर रहे हैं तो क्लस्टर्ड यूज कर लेंगे, और अगर सिंपल है एक ही वेरिएबल को आपको लेके चलना है तो डिफाइन इट। तो आई विल गो विद द सिंपल वन, डिफाइन इट। तो here I am defining, मुझे जेंडर का ठीक है, I want to use gender as a category access। अब यहाँ पे वो एग्जैक्टली नंबर चाहते हैं आप कि हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ 474 आर ऑफ मेल, आर ऑफ फीमेल, या
आप उसको परसेंटेज टर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आई वांट इट इन द परसेंटेज टर्म, तो मैं इसको ओके करता हूँ सिंपल, एंड यू हैव द चार्ट। जेंडर मेल फीमेल, अभी वैल्यूज नहीं है, आई हैव टू डबल क्लिक, तो ये देख रहे हैं टारगेट वाला जो ये निशान होता है, डेटा लेवल मोड, आपको याद हो एक्सेल में भी लोग डेटा लेवल का इस्तेमाल करते हैं। व्हेनेवर यू हैव टू गिव द टोटल नंबर ऑफ ए कैटेगरी, तो आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके डेटा लेवल ऐड करते हैं, ऐड डेटा लेवल। यहाँ पे डेटा लेवल का सिंबल ये हमारे पास, ये जो निशान है यही है, इसको जाके क्लिक किया तो मेरा कर्सर चेंज हो गया, इफ यू कैन ऑब्जर्व। अर्लियर इट वाज अ पॉइंटेड एरो, व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट बिकम दिस डेटा लेवल सिंबल। आई सिंपल सिंगल क्लिक ओवर हियर, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है फीमेल की और ये मेल की, यानी मेरे टोटल डेटा में से द डेटा ऑफ 474, 54.43% आर मेल एंड 45.57% आर फीमेल। ठीक है, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गया है। अभी क्या कि मैं चाहता हूँ जो मेरा वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज है मेरे पास में, इन वैल्यूज इन वैल्यूज में जो मेरे पास डेसिमल पॉइंट है, ये 2 डेसिमल पॉइंट तक जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि एक भी डेसिमल पॉइंट तक नहीं जाए। मैं सिंपली जो डेसिमल पॉइंट है उसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूं और इसको अप्लाई कर देता हूं। जीरो, ठीक है। इफ यू कैन सी इट बिकम 46%, राउंड ऑफ कर दिया उसने इसको, इट बिकम 54%। तो इट डिपेंड ऑन यू, अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज आपके पास में 2 डेसिमल पॉइंट तक जाए, तो आप इसमें 2 प्लेस कर देंगे, अप्लाई करेंगे, नाउ द वैल्यूज आर अगेन इन द ओरिजिनल मोड। यू कैन चेंज इट, आप देयर आर लॉट ऑफ थिंग यू कैन वर्क आउट ऑन फ्रॉम दिस। तो आपने देखा कि हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करना है, हिस्टोग्राम पर आपने नॉर्मल कर्व कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं, बिकम इजी। एक और चीज है वो है कोरिलेशन स्टडीज में हम लोग जब जाते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज वी हैव टू क्रिएट स्कैटर प्लॉट, राइट। तो स्कैटर प्लॉट के लिए क्या करेंगे, गो टू ग्राफ, लेगेसी डायलॉग एंड लुक फॉर द स्कैटर और डॉट, ये मिल गया आपको। और आप इसमें सिंपल स्कैटर प्लॉट को सेलेक्ट किया आपने, डिफाइन करेंगे इसमें हम लोग। क्या डिफाइन करना है, ऑब्वियसली बात है, जब आप रिलेशनशिप ले रहे हैं तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल रहेंगे, एक को आप एक एक्सिस पे लेंगे, दूसरे को दूसरे एक्सिस पे लेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एजुकेशन लेवल है, यानी हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन वेंट फॉर स्कूल और कॉलेज, हाउ डज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द करंट सैलरी। तो डेटा में मेरे पास है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई पिक अप द करंट सैलरी from here to the y axis and education level to the x axis। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ओके प्रेस कर दीजिए। इफ यू वांट टू इवैल्यूएट दिस, यू कैन सी कि जो सैलरी मेरे पास y एक्सिस पर वो $0 से बढ़ते बढ़ते $1,25,000 तक गई है, और यहाँ मेरे पास में एजुकेशन लेवल इन ईयर्स, 9 years, 12 years, 15 years, now it's very clear from this data, as the number of years are increasing, salary is as the education increase, the people who went for higher number of years in the education, they are obtaining higher salary at this point of time। यहाँ देखेंगे आप लोग ये 1,25,000 ये कुछ एक सिंगल पर्सन है, बट यस 1 लाख की कैटेगरी जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो करीब करीब 15 या 16 साल से नीचे की उसने एजुकेशन ली, यानी मिनिमम 15 ईयर वो कॉलेज या स्कूल एजुकेशन में रहा है। और जिन लोगों की सैलरी 50,000 के आसपास है, मोस्ट ऑफ देम आर ईदर लेस देन 15 years of education। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको खुद लिखना है, दिस इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो स्कैटर प्लॉट यू कैन ड्रॉ। पाई चार्ट इज वन ऑफ द पॉपुलर चार्ट दैट वी यूजुअली ड्रॉ। फॉर दैट यू कैन सी पाइज हेयर, राइट। समरी ग्रुप में डालेंगे, डिफाइन करते हैं इसको। तो मुझे फॉर एग्जांपल कैटेगरीज कर लेना, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज,
तो डिफाइन स्लाइस बाय एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, कितनी कैटेगरी थी? तो देयर वर 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास सॉरी मैनेजर, कस्टोडियन एंड क्लैरिकल. अभी मुझे यहाँ पर परसेंटेज में देख चुका हूँ, मुझे देखना नंबर ऑफ केसेस आते हैं कि नहीं आते, राइट? सो आई जस्ट प्रेस ओके. ये मेरे पास में पाई चार्ट आ गया है. डबल क्लिक ओवर इट. क्या करना है आपको? डेटा लेबल ऐड करना है. यहां से आप पिक करेंगे इसे एंड प्रेस. वैल्यूज आ गई हैं आपके पास में, ठीक है? थोड़ा बड़ा करके देखते हैं. यू कैन सी. या अनुज भारद्वाज बोलिए क्या करना चाहते हैं? अरे एक बार रिपीट कर देना. हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट. इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है? ग्राफ पर चलते हैं और यहां से आप पहुंचेंगे पाई चार्ट पर, ठीक है? यानी ग्राफ वाले वो हिंट कर रहा है ऑलरेडी, ग्राफ में सारे ग्राफ लिस्टेड है. आप पाई चार्ट सेलेक्ट करते हैं. समरीज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस, यू डिफाइन इट. और मान लीजिए आप इस बार ओके थोड़ा थोड़ा इसको और बेटर बनाएंगे, बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. मैं चेंज कर लेता हूँ. इस बार लेते हैं हम लोग जेंडर, ठीक है? जेंडर का हम एक पाई चार्ट बनाना चाहते हैं. देखिएगा अभी क्लिक करते हैं हम इसको. डबल क्लिक किया. डबल क्लिक करने के बाद में गो टू दिस डेटा लेबल. इसको हम लोग, तो मुझे पता चला 216 मेरे पास में फीमेल है, 258 मेरे पास में मेल कैंडिडेट्स है, ठीक है? तो ये मेरे पास डेटा, ये पाई चार्ट बन गया है, ठीक है? आसान सी चीजें हैं. देयर इज नथिंग इज कॉम्प्लेक्स, बट पॉइंट इज कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना रहेगा और ये आपको रिमेंबर रहेगी कौन सी चीज कहाँ मिलने वाली है ना. यस. अभी समराइज करें इसको अगर हम, तो हमने क्या क्या चीज सीख ली है? हमने मीन, मीडियन, मोड यानी डिस्क्रिप्टिव निकालना सीख लिया. हम लोगों ने सेलेक्ट कुछ पूरे डेटा में से छोटे डेटा सेट को कैसे हैंडल करना वो देख लिया हमने. सॉर्टिंग कैसे करते हैं केस की वो देख लिया हमने. ये सब हमने देख लिया. फिर ग्राफ कुछ हमने देख लिया कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है, बार डायग्राम कैसे बनता है, पाई चार्ट कैसे बनता है, राइट? स्कैटर प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये हमने चीजें देखी यहाँ पर. एंड वी हैव आल्सो विटनेस कि इट इज इजी. एक और चीज आप यहाँ देखेंगे, ये जो मेरे पास व्यूअर आपका जो ये आउटपुट विंडो है, इसमें 2 हिस्से हैं. आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीवन, है ना? ये देखिए, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. एक तो हिस्सा ये वाला है और दूसरा हिस्सा मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है? तो भी बार बार मान लीजिए मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे याद आया कि सबसे पहला जो मैंने डिस्क्रिप्टिव निकाला था वहां जाना है, तो मैं स्क्रॉल करके जाने की जगह मैं यहां से सीधा क्लिक करता हूं अपने एक्टिव डेटा को, तो मैं यहीं पहुंच जाता हूं. मुझे लगता है मुझे बार चार्ट पे जाना है, तो मैं नीचे जाता हूं कि मैंने बार चार्ट कहाँ बनाया था. तो ये पाई बनाया था, स्कैटर था, ये बार चार्ट बाय जेंडर, ये लिखा हुआ ना. आई क्लिक ओवर हियर, बार चार्ट बाय जेंडर, आई कम टू दिस. तो ये आपको एक नेविगेशन प्रोवाइड करता है कि आप इधर कितना भी काम कर लें, आपको अगर इजीली मूव ऑन करना है तो यू विल यूज दिस वन. सम टाइम आपको लगता है कि बहुत सी कैलकुलेशन गलत बीच में अननेसेसरी हमने कर लिया है, और यू डू नॉट वांट टू डिलीट इट, तो आप उसे हाइड कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आई वांट दिस विंडो, पहले वाली विंडो, आपको याद है बीच में मैंने क्या किया था? आई कम हियर, ये देखिएगा यहाँ एक ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की स्टैटिस्टिक टेबल आ रखी है, दिख रहा है आपको? और इसके अंदर जो हमने कैलकुलेशन किया था, मीडियन का कैलकुलेशन किया था. तो मैं चाहता हूं कि मीडियन वाली कैलकुलेशन अभी मैं फिलहाल यूज नहीं करना चाहता. तो क्या करेंगे, आप यहां देखिएगा, ये जो हमारे पास जिस टेबल पे आपका एरो होगा ना, ये रेड एरो, एग्जैक्टली वो एरो यहां भी दिखेगा आपको. यानी जो एक्टिव डेटा सेट है वो यहां दिखेगा आपको. तो आप क्या जाएंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है निशान माइनस का, इसको क्लिक कर देंगे. तो उसने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया है. इफ यू वांट इट अगेन, तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, दिखाई दे डिस्प्ले पे आ जाएगी. तो बेसिकली आप अपने यहाँ डिस्प्ले पर जो एनालिसिस आप चाहते हैं कि आपके सामने रहे, उसको आप अपने सामने ओपन रख सकते हैं. इसको नहीं चाहते उसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं. दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग दिस डेटा आउटपुट ऑन दिस विंडो. क्लियर है क्या? ये जैसे यही है, मान लीजिए ये वाला है ना, आई डोंट वांट दिस वन. मैंने क्लिक किया इसको, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, सेलेक्ट होके आ गया. मैंने इसको नेगेटिव को सिलेक्ट कर दिया, गायब हो गया. इवन आई डोंट वांट दिस, क्लिक किया, यहाँ आ गया, इसको मैंने माइनस किया, इट आल्सो डिसअपीयर्ड, राइट? तो आई होप कि आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आउटपुट जो व्यूअर है उसमें कैसे काम करना है, वो क्या किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं.
इवन इफ यू वांट, इनको आप रीनेम कर सकते हैं। जो लिखा है फ्रीक्वेंसी लिखा, तो फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है ये? मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्राफ लिखा है, तो भाई ग्राफ किस चीज का था? ये तो ग्राफ लिखा हुआ बिगिनिंग सैलरी, तो मैं इसको नाम देना, मेरी पास जो रिपोर्ट है उसमें मेरा फिगर नंबर 1 है, मुझे याद रहे फ्यूचर में, तो मैंने क्या लिखा इसको, फिगर 1 कर दिया इसको मैंने 1, ठीक है, हटा दिया। तो मुझे याद है मेरी जो रिपोर्ट है उसमें ये वाला ग्राफ फिगर नंबर 1 के तौर पे लिखा गया है। तो ये सब काम आप इसके अंदर कर सकते हैं आसानी से। एनी क्वेश्चन सो फार? एक लास्ट चीज और देख लेते हैं हम लोग। हाँ आशुतोष प्लीज। ओके, मे बी बाय चांस ही रेज द हैंड। एक और चीज है वो इंपॉर्टेंट है कि सर यस सॉरी सर, प्लीज बोलिए। यही सारे फंक्शन हम MS एक्सेल में भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कौन बोला? तो डिफरेंस का क्या हुआ इन दोनों में? भाई 15 मिनट लगाए मैंने शुरुआत में बताने के लिए। नहीं, फिर इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा फिर? नहीं सी पॉइंट ये है दोस्त, क्वेश्चन बढ़िया आपका कि सर जब एक्सेल पे कर सकते हैं, है ना, आर में भी कर सकते हैं, एसपीएस में कर सकते हैं, तो विच इज बेस्ट वन, ये क्वेश्चन ठीक है। मेरा आंसर ये है कि विच सूट्स टू यू, जिसमें आपको कंफर्ट लगता है, जिसको आप आसानी से कर पाते हैं ना। देयर आर पीपल हु कैन इवन मच फास्टर ऑन एक्सेल देन ऑन एसपीएसएस, या पता नहीं चलता कि कौन से टैब में कौन सा सब टैब मिलने वाला है। वो एक्सेल में आते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं, कमांड डालते हैं, काम हो जाता है। यस सर। डेटा एनालिसिस नाम का जो आप एड इन आप उसमें ऐड कर लीजिए अपने टूल पैक में, तो आपका काम ये बहुत आसान हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि कौन सा आप यूज करेंगे, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज पर है, आपकी खुद की लेवल ऑफ ईज पर है कि आपको कहाँ कंफर्ट फील होता है। दिखाने के लिए नहीं ना कि मैंने एसपीएसएस यूज कर लिया भाई, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको ये मतलब है कि एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ, आपने उसको एसपीएसएस पे किया है कि एक्सेल पे किया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों से रिजल्ट एक जैसे आने, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसे फॉलो कीजिए। यस सर। ओके, एक लास्ट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर विल गो विद द वाइंडिंग ऑफ दिस सेशन। वो है कि सम टाइम फॉर एग्जांपल दिस वन, और ये जो डेटा सेट मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज डेटा सेट। आप यूट्यूब पे जाएंगे, चैनल्स में देखेंगे, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इस डेटा को पकड़ा कि कल को आप यदि कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगे ये तो वीडियो हमने ये तो डेटा सेट देखा हमने, एंड आई विल शेयर द फाइल विद यू ऑल, आपको प्रैक्टिस करने के लिए काम आ जाएगी। तो अभी यहाँ देखें कि ये तो हो गए मेरे पास वो वेरिएबल जो हमने इसके अंदर ऐड किए रखे हैं, है ना, अवेलेबल है। जो अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ नया कैलकुलेट करें, वी वांट सम न्यू वेरिएबल टू बी कैलकुलेटेड। तो वो नया वेरिएबल कैलकुलेट कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ये जानना चाहता हूं कि जो करंट सैलरी है इस व्यक्ति की, है ना, यहाँ आप देखेंगे जो पहले नंबर पर है मेल, इसी करंट सैलरी जो है वो 57,000 है, और बिगिनिंग की सैलरी कितनी थी उसकी? 27,000। तो करीब करीब 30,000 का फर्क आ गया उसकी सैलरी में। अब मैं ये डिफरेंस सब में देखना चाहता हूँ, और फिर मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि वो जो डिफरेंस इन द सैलरी है ना, शुरुआत की और प्रेजेंट की सैलरी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, वो किस तरह से शेप आई है उसकी। अब वो वेरिएबल तो यहाँ है नहीं मेरे पास, तो व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट इट, यू कंप्यूट अ वेरिएबल। तो कहां से जाएंगे उसके लिए आप? तो देयर इज वन मोर टैब कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। हमने डेटा में एक दो कैलकुलेशन करके देखे, ट्रांसफॉर्म में देखते हैं, एनालाइज तो यूज करेंगे आप। एंड इन द ट्रांसफॉर्म यू विल गो टू कंप्यूट वेरिएबल, पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल। एंड यहां पर जो ये आपके पास एक डिस्प्ले पे आ गया है, इट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेटर that not only calculate what you want to calculate but also add a variable in your data set. तो टारगेट वेरिएबल क्या है आपका? टारगेट वेरिएबल आपका मान लीजिए चेंज इन सैलरी। तो अब ये जो नेम मैं देने जा रहा हूं, ये नेम मेरे पास यहां पे लिखा हुआ आएगा इस वेरिएबल की जगह पर। तो इसके कुछ रूल्स थे। रूल्स ये थे कि नंबर से शुरू होगा नहीं नाम, ये कंटिन्यूएशन में लिखोगे नहीं, और गैप भी यूज नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम अंडरस्कोर या डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस सी हम क्या दिखते हैं इसको, चेंज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, यानी इस नाम का नया वेरिएबल ये क्रिएट करेगा। अब ये क्रिएट कैसे होगा? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या है इसका? तो आप जब करंट सैलरी में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको? बिगिनिंग वाली सैलरी को। ओके कर दीजिए। तो ये
लास्ट में दिखाएगा कि आपकी जो इफ यू कैन सी हियर चेंज इन सैलरी कैलकुलेट होकर आ गया है। अब व्हाट यू कैन डू, यू गो टू द ग्राफ, गो टू द लेगेसी, हिस्टोग्राम पे जाएंगे और इसको आपने रीसेट किया, लास्ट वाले ऑप्शन को उठा के यहां पे डाला एंड देन you simply press OK. So this is showing a kind of distribution कि जो सैलरी में चेंज है इट इज लाइंग समवेयर बिटवीन 40,000 एंड 10,000 5,000 के आसपास। इन वैल्यूज के बीच में ज्यादा सैलरी चेंजेस हुए हैं, यानी 40,000 से ऊपर जो सैलरी चेंज है बहुत कम हुआ है। इन डेटा इज मच स्क्यूड टू अ पर्टिकुलर साइड। तो उसको इसके लिए क्या करोगे आप, अब इसमें आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट कर सकते हैं। वो कहां से प्लॉट होगा बताया था मैंने आपको, ये यहां पर ऑप्शन हमारे पास है, प्लॉट किया आपने एंड देन यू क्लोज इट। तो ये वेरिएबल था नहीं, यू क्रिएटेड इट बिकॉज यू नीड इट। तो अगेन आई कम टू द माय फर्स्ट स्टेटमेंट, दीज आर द टूल्स, दे आर द हेल्पिंग हैंड्स फॉर यू बट दे वुड नॉट वर्क इफ यू डोंट नो व्हाट टू वर्क। तो आपको खुद ही पता करना होगा मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है। ये तो सिर्फ आपको एक एड ऑन आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करेंगे। विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू द एंड, अदरवाइज देयर आर नो। अभी किसी ने मुझे अनोवा के लिए पूछा, अनोवा के लिए बता देता हूँ, इफ यू हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ नो सैंपल्स, लाइक इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास में 3 कैटेगरी बन रही हैं जॉब के लिए, जिसमें कि एक कैटेगरी है मैनेजर की, दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कस्टोडियन की, तीसरी हमारे पास क्लर्क की। अब मैं देखना चाहता हूं कि इन तीनों की जो सैलरी है उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या। ठीक है, जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसमें जो सैलरीज है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या। तो इफ यू रिमेंबर एनोवा के लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम 3 और मोर देन 3 कैटेगरीज होनी चाहिए। आई सिंपली शो यू कि व्हाट यू डू, आप एनालाइज में जाएंगे। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा था एनोवा के लिए, फॉर दैट आंसर मैंने यस, तो उसको आंसर करने के लिए इसको मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर एनालाइज पे जाएंगे एंड यू गो टू कंपेयर मीन। बेसिकली आप मीन कंपेयर कर रहे हैं कि इस कैटेगरी का मीन दूसरी कैटेगरी के मीन से कितना कम या ज्यादा है, और वो जो कम ज्यादा है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो गो टू कंपेयर मीन एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी वन वे अनोवा। राइट, मिल गया, दिख रहा होगा आपको ये। यू क्लिक ओवर दिस वन वे अनोवा, हियर इन यू विल सेलेक्ट द करंट सैलरी, उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल में लेके जाएंगे। राइट, एंड देन ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव ले लीजिए आप इसके अंदर। राइट, एंड सिंपली कंटिन्यू एंड फैक्टर किससे कराएंगे आप इसके अंदर। तो अभी करंट सैलरी की कैटेगरी कौन बनाएगा, तो आप एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से इसको फैक्टर करेंगे। यानी इसको समझिए, जो लिखा है हमने, जो लिखा है इसका मतलब है कि कंसीडर द करंट सैलरी, डिवाइड दिस करंट सैलरी एज पर द कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी, तो 3 ग्रुप बना लो भाई। एक ग्रुप मैनेजर का बन जाएगा, एक ग्रुप कस्टोडियन का बन जाएगा और एक क्लर्क का बन जाएगा। फिर मैनेजर की सैलरी का मीन अलग निकालो, कस्टोडियल का अलग निकालो और मैनेजर और लास्ट क्लर्क का अलग निकालिए और उन मीन को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करके बताइए क्या जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ये पर्पस इज वन वे अनोवा का। हमने वो काम कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको हम ओके करेंगे। सो सॉरी, देखिए क्लरिकल मीन कितना आ रहा है इसका 27,800 समथिंग, कस्टोडियन का 30 और मैनेजर का 63। ठीक है, और अनोवा की टेबल में लास्ट में देखेंगे सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट जो मेरे पास है इट इज लेस देन दी 5% वैल्यू। 5% का मतलब होगा 0.05, और 0.05 से अगर मेरे पास वैल्यू कम है, इंडिकेट कि कम से कम एक पेयर जो है पेयर बनेगा, क्लरिकल वर्सेस कस्टोडियन, क्लरिकल वर्सेस मैनेजर, कस्टोडियन वर्सेस मैनेजर, 3 पेयर बने। इनमें से कम से कम एक पेयर है दैट हैज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट आई डोंट नो विच वन इज दिस। अनोवा की लिमिटेशन यहां पर यह है कि वो ये नहीं बता पाएगा
कि वो पेयर है कौन सा। इसने हमें हिंट कर दिया है कि हाँ, ये 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी का जो सैलरी का डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है दूसरे के मुकाबले, यानी जो डिफरेंस आ रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सा है, तो आपको पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, जब उसको अप्लाई कर रहे थे कंपेयर मीन में, तो यहाँ जो हमने ये देख रहे पोस्ट हॉक, तो पोस्ट हॉक में आप जाकर के ये टेस्ट है हमारे पास, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट यू अप्लाई। टुकेस भी बहुत पॉपुलर टेस्ट है, टुकेस बड़ा पॉपुलर टेस्ट है, चैनेफिक टेस्ट है, हिसबर्ग टेस्ट, ये सारे टेस्ट पॉपुलर टेस्ट में काउंट किए जाते हैं। और यहाँ हमने डिसाइड कर रखा 0.5% सिग्निफिकेंट लेवल, आप चेंज कर सकते हैं 1%, 10%, और ये आपको बताएगा कि कौन से वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू दिस वन, बट यस, this has made the life of the researchers very easy. If you understand this software, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं एनालिसिस में। एंड देयरफॉर मैं बोलता हूँ कि सेशंस के बाद में एक बहुत कॉमन सा फीडबैक ये आता है कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस SPSS, मुझे लगता है एनालिसिस मैं भी कर सकता हूँ। इट हैज मेड द एनालिसिस वेरी इजी फॉर एवरीवन। So with all these words, I am stopping myself here, and if you have any question, please do raise. Else I request the team members to kindly take over. So significant मतलब Significant मतलब क्या होता है? Good question. Significant का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने कुछ कलेक्शन कराया अमाउंट का, ठीक है? आपने कुछ लोगों को काम दिया कि एक अमाउंट कलेक्ट करके लाइए, और आपने बता दी कहाँ से कितना कलेक्ट करना है। नहीं, बेसिकली आप एक सेल्स मैनेजर है, आपने अपने एग्जीक्यूटिव को बोला कि इन शॉप से जाके आपको सेल्स का जो कलेक्शन करके लेकर के आना है, अमाउंट लेकर के आना है, और आपने उनको बोल दिया कि इतना इतना अमाउंट इससे लेकर के आना है। जब आपके 4 सेल्समैन ने लाके आपको पैसा दिया, तो आपको लगता था कि मुझे 50,000 की पेमेंट आनी थी, और मेरे पास जो पेमेंट आई है 49,999 रुपीज की आई है, ठीक है? आप इंक्वायरी करेंगे क्या किसने 1 रुपए खाया है? अगेंस्ट इट की दूसरा केस पढ़ लेते हैं कि आपके पास 48,500 रुपीज आते इररेस्पेक्टिव ऑफ 50,000 आए, यानी 48,500 रुपए आपके पास आए, राइट? आपको कलेक्शन करना था 50,000 का, आपके पास अवेलेबल है 48,500 रुपए। तो अब तो क्या इंक्वायरी कराएंगे इस केस में? Yes. पहले वाले में क्यों नहीं कराया? क्योंकि जो डिफरेंस था ना वो सिग्निफिकेंट नहीं लगा आपको, महत्वपूर्ण नहीं लगा। 1 रुपए की बात है। पॉइंट इज कि यहाँ पर जो मीन वैल्यूज हम देख रहे हैं वो डिफर तो कर रही हैं, लेकिन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो बाई चांस रिजल्ट नहीं है कि वो डेटा बाई चांस कलेक्शन की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ट्रेंड है, कुछ तरीका इसकी वजह से आया है, तो इट नीडेड मोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट लेवल से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम अगला स्टेप एक्शन क्या लेने वाले हैं, राइट? इट बेसिकली अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व एंड टेकिंग द डिसीजन कि मैं इसको मानूं इंपॉर्टेंट है या नहीं, या इसको मैं छोड़ देता हूं। तो टेस्ट मेरा करा इंपॉर्टेंट है, इट्स अप टू यू नाउ व्हाट यू डिसाइड, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? तो ये सब स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका एसपीएससी को लेना देना नहीं है। सिग्निफिकेंट लेवल क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, 3 ही ग्रुप क्यों ले लिए, अनोवा का फार्मूला क्या होता है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। मैंने इसमें बोला था आपको, इफ यू आर वीक इन स्टैटिस्टिक्स, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए उसके अंदर, अदरवाइज एसपीएसएस और एनी अदर सॉफ्टवेयर वुड नॉट हेल्प। चलिए, so this is all from my side. Okay, download link I am just sharing, give me 1 second. Thank you, sir, for making us understand about SPSS that is in a very simple and efficient way. The students will be utilizing all this in their companies, which would be very beneficial for them. Thank you, sir, very much. The feedback link, attendance link is provided in the chat box. Please fill up the form as it will be closed after 5 minutes. Thank you for joining. We'll be meeting tomorrow at the same time for the session. Thank you, Nikhil. Thank you so much.
And Thank thank you, you sir. for Thank being you, such sir. a nice participant. You didn't raise any question. And thank you, Sharad, and all those who keep on responding to me during the Thank you so much, interaction. sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. पंकज सर। Sir, yes, sir. सर ये सचिन ने कोई एक क्वेरी डाला है। सचिन आर यू देयर? सचिन कुमार। सचिन का एक क्वेश्चन है। वो लिखता है आई वांटेड टू I नो can see in the chat box. Know in which field this इन विच फील्ड। यस सर। Sachin, I would say I would not directly say कि आप इसको यूज करेंगे डेटा साइंस में या आप ऐसे किसी इंडस्ट्री में। As you grow in your profession, you have to deal with the data. And डेटा को जब एनालाइज करेंगे तो किस मेथड से एनालाइज करेंगे, कौन सा आसान तरीका है। It's not a matter कि वो कौन सा स्पेसिफिक फील्ड है। Wherever you work, cannot ignore data. आज मॉर्निंग में मेरे सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि शायद धीरू भाई हमारे ने बोला था डेटा इज न्यू ऑयल। डेटा इज न्यू ऑयल का मतलब है कि यू कैन नॉट इग्नोर हाउ टू यूज स्पेसिफिकली मार्केटिंग। सचिन अपना माइक ओपन करके बात कीजिए। हाउ टू यूज बहुत सारे डिसीजंस हैं। मे बी आप सबसे पहले आप सेगमेंटेशन देख लीजिए। आपको मार्केट का सेगमेंट करना है तो आपको डेटा होना चाहिए। तो बगैर आप मार्केट को सेगमेंट नहीं करेंगे, यू नीड एनालिसिस, एंड वेयरएवर यू नीड एनालिसिस यू नीड दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आपने प्रॉफिटेबिलिटी को लिंक करना है सेंसिटिविटी टुवर्ड द प्राइस के साथ में, तो आपने अगेन डेटा को माइन करके निकालेंगे कि किस तरह से चीजें लिंक है। आपने डिस्काउंट ऑफर करना है तो आप नंबर ऑफ कस्टमर का वो क्लस्टर निकालना चाहते हैं जिसको आप डिस्काउंट ऑफर करें आउट ऑफ द टोटल सेट, एंड अगेन यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। अगेन यू नो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ द स्पेसिफिक एरिया की एचआर में रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया wherever there is data you need this kind of software. Does this answer to the question, Sachin? Sir, your voice is not clear. Yes sir, can Hello? you help me to get him? Yes Sachin, बोलिए। सर आपका सर साफ नहीं आ रहा है, तो मैं आपका जो आंसर था वो सुन नहीं पाया। Okay, I repeat. Am I audible now to you? Sachin, can you hear me? Ritesh sir, can you hear me? Ritesh sir, can you hear me?